Success Mantra. We shape future. Good morning everyone. My name is Abhay Singh and I welcome you all in today's video analysis of The Hindu. Today is 27th of May 2024 and today we celebrate National Memorial Day. National Memorial Day, which is celebrated on the last Monday of May. So last Monday of May in 2024 is on 27th of May. So basically we will celebrate National Memorial Day on 27th of May every year. Now moving on. To begin with the headlines. There is a hospital. There is a fire in Delhi, is one of the very famous hospital. 7 babies have been killed in that particular fire. So this particular news is not relevant for us, but this particular news has a social relevance. But for our examination purpose, this particular news is not important for us. So we'll skip this particular news and moving on. Now moving on. Now this news is important for us and we'll cover it in bit detail. The severe cyclonic storm Remel started its landfall process between Sagar Island in West Bengal and Khepura in Bangladesh around 9:15 p.m. on Sunday as it intensified and moved northwards. By 11:30 p.m., the eye of the cyclone touched the land. So there is a cyclone. There is a cyclone in the West Bengal. The name of that particular cyclone is Remel. Remel is the name of this particular cyclone. This particular cyclone will hit West Bengal on the eve of Sunday around 11:30 p.m. Now there are few facts related to this particular storm, this particular cyclone. We'll see those particular facts. So this is a issuing a red alert cyclone warning for the state coastline. The Indian Meteorological Department said Remel will have maximum sustained wind speed of 110 to 120 km per hour, gusting to 135 km per hour. So Indian Meteorological Department has made a prediction that this particular cyclone Remel is going to have a sustained wind speed of 110 to 120 km per hour or the maximum speed of 135 km per hour. So government of West Bengal has evacuated more than 1 lakh persons from the shores of that particular sea, so they can be protected easily. Now these are the only important facts. What are the important facts? The name of the cyclone. Name of the cyclone is Remel. The prediction was made by Indian Meteorological Department. The cyclone, this particular cyclone have a sustained wind speed of 110 to 120 km per hour, which can go up to 135 km per hour. Now moving on to the next important news headline for the day. Now again we have to focus on one thing, that there are only few days left in the counting of the votes of this particular general election. So there are a lot of political news, but we have to wait for a week or more so that we can we can solve this particular problem, because आजकल के टाइम में यही हो रहा है कि जब से इलेक्शन स्टार्ट हुआ है सारा का सारा स्पेस किसको दे रहे हैं, न्यूज़पेपर, पॉलिटिकल न्यूज़ को। और पॉलिटिकल न्यूज़ हमारे लिए और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है बट एग्जाम के लिए इन पर्टिकुलर न्यूज़ हेडलाइंस की कोई रिलेवेंस नहीं है। सो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिलेवेंसी वी विल स्किप दीज न्यूज़ हेडलाइंस फॉर द डे। नाउ मूविंग ऑन। Now political news, these all are political news. Now there is one important news headline for us. Kerala seeks fresh terms of reference for Mulla Periyar Dam. So basically Kerala is seeking fresh reference of fresh terms and conditions for Mulla Periyar Dam. The Kerala government will seek fresh terms of reference from the Expert Appraisal Committee of the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change for conducting an Environment Impact Assessment (EIA) for a new dam at Mulla Periyar, as the earlier terms expired in May. So basically the Kerala government will seek new terms of reference for Mulla Periyar Dam because the earlier and the existing terms were expired in the month of May. The state will contend at the May 28 meeting of the committee that seeking fresh terms of reference would not violate any Supreme Court order, as the court had
The state will contend at the May 28 meeting of the committee that seeking fresh terms of reference would not violate any Supreme Court order as the EIA environment impact assessment by the state government. So basically the Kerala government wants to assess the exact situation, exact conditions of Mulla Periyar Dam, and they are also seeking to renew the reference of terms of reference for this particular dam. There is a meeting on 28th of May. In that particular meeting, Kerala government will seek new terms of reference, and the particular Kerala government is also contending that demanding or seeking a fresh terms of reference would not violate any Supreme Court order, as the court had favored an EIA environment impact assessment by the state government. So basically Kerala government has contended that it will not this particular assessment or seeking new terms of reference will not violate the Supreme Court's order, because the Supreme Court has favored the establishment, or the Supreme Court has favored the environment impact assessment. So on the basis of this particular thing, they are demanding new reference of terms for Mulla Periyar Dam. Now moving on. So there's another intriguing data about the India. So basically the top 10 trading partners of India are China, Russia, Iraq, Saudi Arabia, Indonesia, South Korea, UAE, Hong Kong, Singapore and US. And out of these 10 trading partners, India is in trade deficit with 9 of the 10 trading partners in 2023-24. India has recorded a trade deficit, the difference between imports and export, with 9 of its 10 trading partners. So what is trade deficit? So what is trade deficit? टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट. बेसिकली हमने किसी कंट्री के साथ जब ट्रेड किया तो हमारा ट्रेड डेफिसिट कितना है हम कैसे पता करते हैं? एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हमने उस कंट्री को टोटल कितना सामान सप्लाई किया और हमने उस कंट्री से कितना सामान अपने कंट्री में मंगवाया. यानी एक्सपोर्ट में से अगर हम इंपोर्ट माइनस कर देंगे तो हमें नेट ट्रेड डेफिसिट पता चल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि इंडिया ने यूएस से 50 बिलियन डॉलर का सामान मंगवाया और हमने यूएस में टोटल 37.8 बिलियन डॉलर का सामान भेजा. सो ट्रेड डेफिसिट इंडिया का कितना होगा? इंडिया का ट्रेड डेफिसिट होगा, अब एक्सपोर्ट हमारा टोटल है 37.5 बिलियन डॉलर और हमारा जो इंपोर्ट है इंडिया ने बेसिकली जो यूएस से सामान मंगवाया वो कितना है? 50 बिलियन डॉलर. सो ट्रेड डेफिसिट कितना होगा? 12.5 बिलियन डॉलर. So this is how trade deficit is calculated, and India records trade deficit with 9 of the top 10 trading partners in 2023-24. So basically India के जो top 10 trading partners थे उसमें से 9 countries के साथ में हम लोग basically deficit में है, ठीक है. इंडिया के जो trading relations हैं वो हम लोग basically deficit में है 9 countries के साथ जो हमारे top 10 trading partners हैं, ठीक है. इस particular news में सिर्फ इतना ही important था. Now moving on. Now this again the whole page is dedicated to the news related to elections, so we will not pay heed to these particular news headlines. We will keep moving now. Written off as spent force, Congress clauses itself back into fight. So another political news not important for us. India bloc has support for jihadis in Pakistan, said Prime Minister Narendra Modi. Not important for us. Will implement UCC simultaneous polls in next term, says Amit Shah. So basically this is another political news. And what is this political news? Basically our Union Home Minister had given a statement that they will implement uniform civil code and simultaneous elections, which is one nation one election in the next term. So basically this was a major statement given by the Union Home Minister Mr. Amit Shah. Now moving on. As stars land in Karakat, Pawan does the hero act. Another political news. Modi insulted Bihar with his Mujra remarks, says Mallikarjun Kharge. Another political news.
we won't delve into any political news because political news has zero relevance for any of the examination, because they cannot and they will not ask any political questions in your examination. They won't ask what kind of statement was being made by Prime Minister Narendra Modi or Rahul Gandhi. They will not ask these type of questions. Questions are basically related to policies and different schemes of the government, and during model code of conduct, government cannot announce or discuss about its schemes and all. So basically we have to refrain ourselves from going into any political news or discussing any political news, because that won't fetch us any positive thing, और उससे हमारा सिर्फ टाइम ही वेस्ट होगा. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन. So basically this century heat waves are moving and lasting longer. This century heat waves are moving slower and lasting longer. So basically हम सबको पता है climate change is real. क्लाइमेट चेंज इज रियल, और क्लाइमेट चेंज का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा वो 21st सेंचुरी में हमें देखने को मिलेगा. क्यों? अब इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि बहुत सारे जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट हमेशा किसी ना किसी कॉस्ट पे होता है, और 21st सेंचुरी में जो डेवलपमेंट हुआ है या जो हो रहा है, जो पहला 25 ईयर्स है, जो फर्स्ट 25 ईयर्स है हमारी 21st सेंचुरी के, उनका कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है क्लाइमेट चेंज में, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी. इफ़ वी आर डेवलपिंग एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज, तब वो सारी चीज़ें किस फ़ायदे की हमारी. जैसे हमने कल भी देखा कि मालदीव्स जो एक क्या है, मालदीव्स इज एन आर्चिपेलागो. आर्चिपेलागो इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ आइलैंड. नाउ मालदीव्स इज सिंकिंग बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, and Maldives contribute only 0.003% in total global emission. But instead of only contributing with 0.003%, Maldives is going to submerge. So for that particular reason, Maldives has demanded financial assistance of $500 million. Now these are the impacts which every country will face at some point of time. Maldives is an island, is an archipelago. सो बेसिकली वो सारी सिचुएशन मालदीव्स को इसीलिए अभी जल्दी फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि वो एक आइलैंड है समुद्र के बीच में, सी लेवल ऊपर बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से मालदीव्स डूब रहा है ना. अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मालदीव्स ही डूबेगा, सारी कंट्रीज पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा. बस ये बात है कि किसका नंबर पहले आ रहा है और किसका नंबर बाद में आएगा, बट नंबर एक दिन सबका आना है. ठीक है, सो बेसिकली हमें ये चीज़ समझनी होगी कि क्लाइमेट चेंज जो है ना सच में हो रहा है. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि हमारी जो 21st सेंचुरी है इसमें हीट वेव्स के साथ में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है. अब वो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है हीट वेव्स के साथ में, दैट इन द 21st सेंचुरी हीट वेव्स आर मूविंग स्लोअर. सो बेसिकली पहले क्या होता था कि हीट वेव्स जो आती थी ना, वो मतलब आती थी और चली जाती थी, मतलब उनका जो मूवमेंट रहता था वो बहुत रैपिड और क्विक रहता था. बट अभी 21st सेंचुरी में क्लाइमेट चेंज और अदर कंडीशंस की वजह से क्या हो गया, अदर सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस की वजह से ये हीट वेव्स है ना, ये बहुत स्लो मूव करती हैं. अब जब स्लो मूव करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, विल लास्ट लॉन्गर. सिंपल सी बात है, अगर कोई ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म से बहुत तेज़ी से निकल जाए तो क्या होगा कि उसका जो ट्रेन का टाइम होगा स्टेशन पर रुकने का वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, टाइम जो स्टेशन पे टाइम स्पेंड करेगी. बट अगर वही कोई पैसेंजर ट्रेन है जो किसी स्टेशन से बहुत धीमे धीमे निकल रही है, तो उससे क्या होगा कि वो पर्टिकुलर टाइम उस स्टेशन को कवर करने में या उस पर्टिकुलर स्टेशन को क्रॉस करने में ज़्यादा टाइम लेगी. यही सेम चीज़ हो रही है हीट वेव्स के साथ में, कि हीट वेव्स अब बहुत ज़्यादा स्लो मूव कर रही है, इसकी वजह से इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है. ठीक है, अब इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में इसका क्या क्या इम्पैक्ट है वो हम बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए हमें बस इतना जानना है कि हीट वेव्स का जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा हो रहा है. जैसे कि अभी कुछ 2 या 3 दिन पहले दिल्ली में एक डेटा आया था कि दिल्ली ने अब तक हिस्ट्री में एक सिंगल डे में सबसे ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन किया, 8000 मेगावाट. आज तक दिल्ली की हिस्ट्री में कभी इतना ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन नहीं हुआ था. नाउ दिस ऑल थिंग्स आर कोरिलेटेड. कैसे? अब मान लीजिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, अब टेम्परेचर ऊपर बढ़ रहा है, टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, ठीक है. अब हमारे घर में जो एयर कंडीशनर्स लगे होते हैं, ये सारी चीज़ें जो लगी होती हैं, इनका भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन तो होता ही है. अब मान लीजिए कि दिल्ली में अब 4 दिन पहले अगर सबसे ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन हुआ, इसका मतलब क्या है सीधा सीधा कि उस दिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो लोगों ने बेसिकली क्या किया कि एसी का जो था उसको बहुत ज़्यादा चलाया होगा. इस वजह से क्या होगा कि एनर्जी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी. अब फिर से वही चीज़ समझिए कि एनर्जी से क्या निकलेंगी, वही सारी गैसेस जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन को बढ़ाती हैं. सो दिस इज़ बेसिकली अ साइकिल जिसमें हम सब लोग फंसे हुए हैं. इस बार इतनी गर्मी है, अगली बार इससे ज़्यादा और ज़्यादा गर्मी होगी. क्यों? क्योंकि इस बार इन्वायरमेंट को ज़्यादा डैमेज पहुंचेगा. सो इसी वजह से हम सबको ये चीज़ समझनी होगी कि दीज ऑल थिंग्स आर को रिलेटेड. सारे के सारे नेचुरल फिनोमिनन है और नेचुरल फिनोमिनन सारे को रिलेटेड है, तो हमें इस चीज़ को समझना होगा. नाउ अब इंडिया में इसका क्या इम्पैक्ट है, तो इंडिया में आप लोगों ने कुछ टाइम पहले देखा था बेंगलुरु में जो वाटर क्राइसिस हुआ था. बेंगलुरु में वाटर क्राइसिस इतना ज़्यादा, मतलब उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था
कि लोगों ने ये तक बोलना शुरू कर दिया था कि बेंगलुरु, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, वहाँ से जितने भी इंजीनियर्स हैं, जितने आईटी इंजीनियर्स हैं, उनको बेसिकली वर्क फ्रॉम होम दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वाटर शॉर्टेज हो गया था। अब जो ये वाटर शॉर्टेज है सिर्फ बेंगलुरु तक लिमिटेड नहीं है, अब ये वाटर शॉर्टेज आपको धीरे धीरे पूरे कंट्री में देखने को मिलेगी। जैसे कि चेन्नई में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है अलग अलग जगह पे, ठीक है। सो बस इतना ही है अभी के लिए इस पर्टिकुलर न्यूज हेडलाइन में। नाउ विल मूव टू द स्पेक्टर ऑफ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट वंस अगेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल और हम लोग इसको थोड़ा सा आज डीप में कवर करने वाले हैं, ठीक है। द स्पेक्टर ऑफ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट वंस अगेन। सो बेसिकली स्पेक्टर ऑफ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट मीन्स कि अभी जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे वॉर्स चल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने की भी बात चल रही है। जैसे कि रशिया ने भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था दैट वी वोंट यूज न्यूक्लियर वेपन्स। हम लोग स्टार्टिंग मतलब वो हम लोग बोले, उनका बेसिकली ये कहना था, रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, कि हम लोग किसी सिविलियन कैजुअलिटी के लिए इन सब चीज़ों के लिए कभी हम न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं करेंगे, बट अगर हमें वेस्टर्न कंट्रीज से लगातार अगर जो कॉन्टिन्यूस थ्रेट मिल रहा है और अगर हमें अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ी तो वी मे यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। तो हमें एक चीज़ और समझनी होगी कि जब यूएसए ने वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में जापान पे दो न्यूक्लियर अटैक किए थे, ठीक है। जब 2 न्यूक्लियर अटैक किए थे तो किसी को ये आइडिया नहीं था ना कि न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ किया जा सकता है। सो बेसिकली हमें ये चीज़ समझनी होगी कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत सेंसिटिव होती हैं और हमें इन सारे थ्रेट्स को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। जब सामने से कोई एक कंट्री कह रही है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ कर सकते हैं ना कहीं तो उसके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि अगर कोई सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हमें फील हो गया, हमें लगेगा कि कोई सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, वी विल डायरेक्टली यूज़ द न्यूक्लियर वेपन्स। अब 21st सेंचुरी में अगर कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करती है तो वी कैन नॉट स्टॉप अ वर्ल्ड वॉर। ये चीज़ तो एकदम फिक्स है कि अगर 21st सेंचुरी में न्यूक्लियर वेपन का कोई भी कंट्री किसी कंट्री के ऊपर यूज़ करेगी सो देयर विल बी अ वर्ल्ड वॉर। सो बेसिकली न्यूक्लियर वेपन्स का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और हर ऑलमोस्ट जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जितनी मेजर कंट्रीज़ हैं, सब के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है। सो किसी कंट्री को बेसिकली किसी से डर नहीं लग रहा है। अब क्या चीज़ें हो रही हैं, सारी चीज़ें इसके बैकड्रॉप में क्या हुआ है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। नाउ we'll skip the first paragraph of this particular article। आप लोग ये पहला जो पैराग्राफ था ये आप लोग खुद से पढ़िएगा। we will start with the second paragraph of this particular article। what the leaders of France and Russia say। many leaders at least in the West have taken due note of French President Emmanuel Macron's so-called apocalyptic vision and what the future hence looks like। there is also more than a hint in Mr. Macron's remark of the danger of nuclear annihilation, and unlike many previous outpourings of the French president, many Europeans this time are setting up and taking notice। Russia's so-called misadventure seems to be starting point of the French president's doomsday scenario। so basically जो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो चीज़ बोली गई है कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर इमैनुअल मैक्रोन, उनका एक स्टेटमेंट था। उस स्टेटमेंट को बेसिकली जो इंटरनेशनल मीडिया हाउस है सब लोगों ने क्या बोला था, एपोकलिप्टिक विजन, ठीक है ना। अब जो बेसिकली जो ये फ्रांस का ये न्यूक्लियर वेपन को यूज़ को लेकर के जो स्टेटमेंट आया था, बेसिकली वो फ्रांस का ये कहना था कि रशिया का जो प्लान है, रशिया सो कॉल्ड मिस एडवेंचर सीम्स टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंच प्रेसिडेंट्स डूम्सडे सिनेरियो। सो बेसिकली जब रशिया ने ये सारी चीज़ें बातचीत करना स्टार्ट किया ना, तो उसके बाद फिर फ्रांस ने ये स्टेटमेंट दिया था। एज दीज रिमार्क्स एमिनेट फ्रॉम वन ऑफ द यूरोप्स मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स, द मेन थ्रस्ट इज on the impact of this would have on the European security। now this particular statement was given by the president of France Mr. Emmanuel Macron, and France is a part of European Union। so basically अगर फ्रांस ने एक स्टेटमेंट दिया और आप किसी लार्जर ग्रुप का पार्ट हैं, सो बेसिकली आपने कोई स्टेटमेंट वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में भले दिया हो, बट उसका जो इम्पैक्ट होगा वो पूरे के पूरे ग्रुप पे पड़ेगा। सो बेसिकली यूरोपियन यूनियन का पार्ट है फ्रांस। अब फ्रांस ने स्टेटमेंट दिया है तो इसका जो पूरा का पूरा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं, अगर मान लीजिए कि फ्रांस कहीं किसी मिस एडवेंचर में इन्वॉल्व होता है तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन पे भी पड़ेगा ना। सो दिस इज द सेम एनालॉजी हैज़ बीन यूज्ड हियर कि अगर फ्रांस कुछ करेगा तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं यूरोप की जो सिक्योरिटी पे भी, यूरोपियन यूनियन की सिक्योरिटी पे भी पड़ेगा। नाउ मूविंग ऑन, टुडे फ्रांस इज इन पोजीशन ऑफ व्हाट वुड बी अमंग द largest nuclear arsenal in the world।
and hence the French president utterances carry considerable weight. Against this backdrop and evidence of increasing Russian belligerence in the Ukraine theater, a possible use of nuclear weapons in Ukraine is no longer in the realm of fantasy. सो बेसिकली अब जो स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट दिया फ्रांस ने, और फ्रांस के इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है उनके इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है. क्यों? बिकॉज फ्रांस हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल इन द वर्ल्ड. नाउ इफ आई एम having a lot of nuclear weapons and I'm continuously making that statement that I can or I may use these weapons when I will feel the need. So basically इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं सिर्फ ये सारे स्टेटमेंट हवा में दे रहा हूँ. वॉट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि मैं पूरे वर्ल्ड को बता रहा हूँ कि हाँ मेरे पास भी ये वेपन्स हैं. अगर आप लोग मुझे मतलब मेरे साथ अगर मुझे कोई दिक्कत फील होगी, अगर मुझे लगेगा कि मेरी सिक्योरिटी को कोई खतरा है या मेरे कंट्री के लोगों को सिक्योरिटी को कोई खतरा है, सो वी विल यूज देम स्विफ्टली. अब ये स्टेटमेंट, सेम स्टेटमेंट हमें दिमाग में याद रखना है कि फ्रांस के पास वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्सेनल जो न्यूक्लियर वेपन्स का, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैं नहीं बोला, वन ऑफ द लार्जेस्ट वो फ्रांस के पास में ही है. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन. The absence of leaders of consequence across the world, essentially those who have significant influence on world affairs, is aggravating the situation, making it more frightening. The absence of leaders of consequences across the world, essentially those who have significant influence on world affairs, is aggravating the situation, making it more frightening. So what is the meaning of this particular statement? So there are few world leaders who have who have great impact ऑन द वर्ल्ड. अब बेसिकली जो ऐसे कुछ लीडर्स हैं जिनका इम्पैक्ट हमारे पूरे वर्ल्ड पे या पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है, ऐसे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं इनका अभी तक कोई स्टेटमेंट या इनका कोई स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं हुआ है. इस वजह से ये सिचुएशन और ज़्यादा अलार्मिंग हमारे लिए हो जाती है, क्योंकि जो बेसिकली जो टॉप पे लोग बैठे हैं अगर वही कुछ नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं अगर कोई टॉप के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो इस एग्रीवेटिंग सिचुएशन में अगर कुछ अपना स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, सो पैसिवली इट मीन्स ना दे आर सपोर्टिंग देम. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन. As it is, most parts of the world are going through extreme economic turbulence, leading to a widespread problems. The nuclear fuse, which earlier tended to be long appearance of late to have shrunk. With the new era of weapons available to many nuclear weapon powers, the spells trouble. The absence of regular exchange among nuclear weapon powers, notwithstanding the several protocols that are in place, is further cause of concern. सो बेसिकली जितने भी न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हैं, इसका मतलब ये कि जितनी कंट्रीज के पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके बीच में कोई रेगुलर डायलॉग या रेगुलर जो मतलब क्या बोलते हैं बेसिकली मीटिंग या सबमिट नहीं होता है. इस वजह से इसका क्या एक बेसिकली इसका मतलब इम्पैक्ट क्या होगा? द एब्सेंस ऑफ रेगुलर एक्सचेंज अमंग न्यूक्लियर वेपन पावर्स notwithstanding the several protocols that are in place is further cause of concern as to while nuclear guarantee thus appears to be fraying at the edges. Aggravating this situation further are certain remark attributed to Mr. Putin during the annual Victory Day parade in Moscow on May 9th this year. In his address, the Russian president observed. Now, this was the statement given by the president of Russia on the Victory Day parade in Moscow. So basically, this particular statement was given by Mr. Vladimir Putin on May 9th. May 9th को क्या था? Victory Parade Day. Victory Parade Day जो मॉस्को में हो रही थी, उसमें व्लादिमीर पुतिन ने एक स्टेटमेंट दिया था. His nuclear forces were always on alert and that Moscow would not tolerate any Western threats. He also added that while Russia would do everything to prevent a global clash, at the same time we will not allow anyone to threaten us. Our strategic forces are always on alert. Basically, Russia का जो statement था, this particular statement was very alarming. Basically what he said is that his nuclear forces were always on alert and that Moscow would not tolerate any Western threats. So basically रशिया का स्टेटमेंट था कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और हमारे सारे के सारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो हमेशा अलर्ट पे हैं और हमारी फोर्सेस भी हमेशा अलर्ट पे हैं. नाउ इफ द वेस्ट विल ट्राई टू थ्रेटन अस, हम लोग एक बार भी नहीं सोचेंगे कि हमें ये वेपन्स को यूज़ करना है. नाउ रशिया वुड डू एवरीथिंग टू प्रिवेंट अ ग्लोबल क्लैश. सो बेसिकली रशिया इस फेवर में भी है कि देयर शुड बी नो वर्ल्ड वॉर. रशिया वर्ल्ड वॉर नहीं चाहता. बेसिकली एक रशिया ग्लोबल लेवल पे कोई क्लैश नहीं चाहता है. बट ड्यू टू द अनस्टॉप्ड एंड द कॉन्टिन्यूस सपोर्ट फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज जो यूक्रेन को मिल रहा है, यूरोप और यूएस से जो उसको सपोर्ट मिल रहा है पूरा का पूरा, इस वजह से क्या हो रहा है कि ये जो वॉर ये बहुत ज़्यादा लंबा खिंच गया है. ठीक है. तो इस वजह से बेसिकली रशिया ने स्टेटमेंट दिया है दैट
we would do everything to prevent a global clash. At the same time, we will not allow anyone to threaten us. Our strategic forces are always on alert. We will try everything to protect a global clash. We will try everything to protect a world war, but we will not keep ourselves quiet. We will not sit quietly. If there is a threat to us, we will do everything. अब जो ये everything का मतलब basically क्या है? ठीक है. Now moving on. Well, prior to this, in November 2023, Russia had revoked its ratification of a major international agreement, that is the Comprehensive Test Ban Treaty, which is intended to prevent all forms of nuclear explosions, either civilian or military purposes. Now, another important point for us to know is that basically Russia has revoked its ratification. रशिया ने अपना जो एक CTBT एग्रीमेंट को जो रैटिफाई किया था, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को रशिया ने रैटिफाई किया था. नाउ इन नवंबर 2023, रशिया हैज रिवोक्ड its CTBT ratification. Now, what is this CTBT ratification? Comprehensive Test Ban Treaty is basically the objective of this particular treaty is to prevent all forms of nuclear explosions. So basically the objective of this comprehensive test ban treaty was to basically prevent all forms of nuclear explosions, either civilian or military. Now Russia was part of this particular agreement, and Russia has also ratified this particular international agreement. But in November 2023, Russia has revoked this agreement. रशिया हैज़ रिवोक्ड इट्स रैटिफिकेशन इन दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट. अब इसका जो इम्पैक्ट है बेसिकली, अगर हम लोग एक रिमोट एनालॉजी ड्रॉ करें कि CTBT जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव था वो इतना सा था कि क्या ऑब्जेक्टिव था, एक बेसिक सा कि ये कोई भी किसी भी तरीके का जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किसी भी तरीके का जो होगा, किसी भी फॉर्म में होगा, उसको CTBT बैन करता है. रशिया इसका पार्ट था. रशिया ने अपने आप इस पर्टिकुलर रैटिफिकेशन को रिवोक कर दिया. सो बेसिकली रशिया अब जो CTBT का ऑब्जेक्टिव था उसको नहीं फॉलो करेगा. अब जो CTBT का ऑब्जेक्टिव हम सब लोगों को पता है, टू प्रिवेंट ऑल फॉर्म्स ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन. तो अगर हम लोग एक रिमोट एनालॉजी ड्रॉ करें तो इसका मतलब ये हो सकता है रशिया इज गिविंग हिंट्स टू इंटरनेशनल एट इंटरनेशनल लेवल कि अगर आप लोग कुछ भी करेंगे रशिया की सिक्योरिटी को थ्रेटन करने के लिए, सो वी विल डेफिनेटली यूज न्यूक्लियर वेपन. और रशिया का साइमल्टेनियस एक स्टेटमेंट ये भी है कि वी डोंट वांट अ ग्लोबल क्लैश, हमें ग्लोबल क्लैश नहीं चाहिए, जस्ट स्पेयर अस, हमें आप छोड़ दीजिए. बट वेस्ट और यूएस कॉन्टिन्यूसली जो सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, इसकी वजह से रशिया को थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है. और उसी फ्रस्ट्रेशन में इसका इम्पैक्ट ये है कि इसने इस पर्टिकुलर ट्रीटी से अपने आप को रिवोक करके अपने आप को हटा दिया था. नाउ मूविंग ऑन. The international community's response to this is not unexpectedly has been extremely hostile, with several countries expressing concern that this step reverses the shift towards greater confidence in the nuclear armed regime. Meantime, across the world, countries such as China are going ahead with the enhancing their nuclear profile. China has very recently completed sea trials for its aircraft supercarrier fitted with electromagnetic catapults for launching aircraft. It is well on its way to complete building a fourth aircraft carrier. So basically now अब इसका क्या मतलब है कि रशिया जो है ना वो बेसिकली इंटरनेशनल थ्रेट से ज़्यादा उसे कॉन्फिडेंस किस चीज़ पे, अपने न्यूक्लियर वेपन पे. सो बेसिकली जितनी भी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास में खुद के न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो सब के सब बेसिकली कंट्रीज़ को ये सब चीज़ समझ में आ रही है कि जिन कंट्रीज़ के पास में न्यूक्लियर वेपन है वो कंट्री ज़्यादा इस टाइम पे सेफ फील कर रही हैं. क्यों? क्योंकि सबको पता है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उनका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होता है. अब अगर हम लोग चाइना की बात करें तो चाइना अपनी न्यूक्लियर प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इन्हांस कर चुका है.
ठीक है, अब इससे क्या होगा, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्हांस कर चुका है, अब इसके अलावा चाइना का और ताइवान का जो इशू हो रहा है, इसमें भी यूएस इज कॉन्टिन्यूसली पोकिंग इट्स नोज, ताइवान वाले इशू में भी। तो बहुत सारी चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे हो रही हैं जो बेसिकली ग्लोबल क्लैश, जिसको रशिया अवॉइड करने की बात कर रहा था, प्रिवेंट करने की बात कर रहा था, पूरी की पूरी चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं। नाउ मूविंग ऑन, अब इंडिया से इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इंडिया में इसका मतलब क्या क्या चीज़ें हैं इंडिया के लिए, न्यूक्लियर वॉरफेयर अगर या इन सब चीज़ों की हम लोग बात करें तो उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। When India and the US undertook to when India and US took to negotiate a nuclear deal, they stood at opposite poles of the nuclear order. Negotiate a nuclear deal, they stood at opposite poles of the nuclear order. India had not signed on the NPT, Nuclear Proliferation Treaty, a foundational treaty governing global nuclear rules. It has also refused to sign the CTBT. India had carried out 5 nuclear tests in 1998, leading to the imposition of sanctions on India's nuclear program. So basically in 1998, India was not part of, India has not signed CTBT agreement, India has not signed a NPT, non-proliferation treaty. Despite of all these things, in 1998, India carried out 5 nuclear tests. So after conducting these 5 nuclear tests, what happened? US ने बहुत सारे sanctions लगा दिए इंडिया पे। वाई? बिकॉज बेसिकली इंडिया इस किसी भी एग्रीमेंट का पार्ट नहीं था, और उन सारे एग्रीमेंट के पार्ट ना होने के बावजूद भी इंडिया ने बेसिकली क्या किया, 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए 1998 में। इस वजह से क्या हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे और यूएस ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए। अब कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ, इन सैंक्शंस को लगने के बाद क्या हुआ, 1998 के बाद क्या हुआ, Consequently, on the US-India nuclear deal, most of the roadblocks that prevented India from joining the global nuclear regime were lifted. In the process, both sides made significant concessions. So basically, consequent on the US-India nuclear deal, most of the roadblocks that prevented India from joining the global nuclear regime were lifted. In the process, both sides made significant concessions. India agreed to separate its nuclear program into civilian and military nuclear program in return for linking permanent safeguard for permanent fuel supplies. So basically, जब ये सारे 1998 के टेस्ट हो गए, उसके बाद चीज़ें इंडिया और यूएस के बीच में बहुत ज़्यादा बेटर हो गई। यूएस ने इंडिया की बेसिकली बहुत हेल्प भी की थी, और जितने भी रोड ब्लॉक्स थे जो इंडिया को डिफरेंट अग्रीमेंट साइन करने से, रेटिफाई करने से रोक रहे थे, उसको बेसिकली यूएस ने हेल्प किया। अब जो जितने भी तरीके के रोड ब्लॉक्स थे उसको सबको किसने हटाया, यूएस ने हटाया। उसके बाद क्या हुआ, इंडिया ने अग्री किया कि वो अपने जो सिविल प्रोग्राम और मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करेगा, बाइफर्केशन होगा। और बेसिकली एक इंडिया ने क्या किया, इट एक्सेप्टेड अ वॉलंटरी मॉरेटोरियम ऑन न्यूक्लियर टेस्टिंग। ठीक है, अब क्या हुआ, द यूएस ऑल्सो टुक द लीड अप्रोचिंग द एनएसजी टू ईज न्यूक्लियर रिस्ट्रिक्शंस फॉर इंडिया। बेसिकली इंडिया न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का पार्ट नहीं था, तो इसके लिए भी बेसिकली यूएस ने अप्रोच किया उस पर्टिकुलर ग्रुप को, एनएसजी को, और बेसिकली क्या किया, इंडिया के लिए जो न्यूक्लियर रिस्ट्रिक्शंस थे उनको थोड़ा सा ईज डाउन किया गया। अब क्या हुआ, द यूएस एंड द इंडिया देयर आफ्टर कोऑर्डिनेटेड देयर एफर्ट्स टू ऑब्टेन एन इंडिया स्पेसिफिक सेफगार्ड एग्रीमेंट फ्रॉम द आईएईए। बेसिकली अब इंडिया और यूएस ने उसके बाद क्या किया, इंडिया और यूएस ने बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए, और यूएस ने इंडिया की हेल्प की कि बेसिकली कि कुछ इंडिया स्पेसिफिक सेफगार्ड्स को, एग्रीमेंट को बेसिकली क्या हुआ कि इंडिया ने आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से कुछ इंडिया स्पेसिफिक सेफगार्ड एग्रीमेंट्स लिए। दिस गेव इंडिया स्टेटस सिमिलर टू दैट ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट अंडर द एनपीटी। सो बेसिकली इससे क्या हुआ, जब इंडिया को इंडिया स्पेसिफिक अग्रीमेंट, सेफगार्ड एग्रीमेंट मिल गया, तो बेसिकली उसका क्या हो गया कि उसका स्टेटस सिमिलर हो गया जिन कंट्रीज ने एनपीटी साइन कर रखा है, नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, सो बेसिकली ये सारी चीज़ें थी कि न्यूक्लियर वेपन का इम्पैक्ट क्या होने वाला है, फ्रांस का जो स्टेटमेंट आया उससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, चाइना का क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में, 1998 में जो इंडिया ने 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे उसके बाद फिर उसका क्या इम्पैक्ट हुआ ग्लोबल लेवल पे। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस पर्टिकुलर आर्टिकल में डील की। नाउ मूविंग ऑन,
सो बेसिकली इन हमारे कंट्री में जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज का हो गया, जैसे जर्नल एससी, जर्नल ओबीसी, जर्नल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससीज, एसटीज एंड फिर उसके बाद एक और क्लासिफिकेशन जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बेसिकली वो आता है, एक क्लासिफिकेशन है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी एसटी कम्युनिटी के अंदर एक फर्दर क्लासिफिकेशन है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इंडिया में टोटल 75 पीवीटीजीज हैं। बेसिकली जो ये ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं पीवीटीजी। पीवीटीजी का मतलब होता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पर्टिकुलर का मतलब होता है स्पेसिफिक, वल्नरेबल भी ऑल नो। बेसिकली वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, प्रोन टू डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स बेसिकली। और ट्राइबल ग्रुप्स तो हम सबको पता है, ट्राइबल ग्रुप्स अ ग्रुप ऑफ ट्राइब्स। सो बेसिकली जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जो थोड़ा सा वल्नरेबल स्टेट में होते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, इंडिया में टोटल 75 ग्रुप्स हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के, पीवीटीजीज के। अब क्या हो रहा है बेसिकली कि इनके लिए बहुत सारी स्कीम्स स्टार्ट की इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बट उन स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने में क्या क्या रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं, हम लोग वो सारी चीज़ें अभी इस पर्टिकुलर आर्टिकल में देखने वाले हैं। बहुत सारे फैक्ट्स हमारे लिए इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, कुछ दिमाग लगाने वाली चीज़ है नहीं, सिर्फ फैक्ट्स को ध्यान से देखना है। नाउ इंडिया इज होम टू न्यूमरस आदिवासी ग्रुप्स विद 75 आइडेंटिफाइड एज particularly vulnerable tribal groups across the state. According to official data, 14.6 lakh households, they comprise around 14.6 households. So इंडिया में बेसिकली जो 75 डिफरेंट ग्रुप्स हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के, उनका जो टोटल नंबर है वो कितना है, 14.6 लाख, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, दीज ट्राइब्स रिसाइड इन स्कैटर्ड, रिमोट एंड ऑफन inaccessible areas characterized by their reliance on methods and tools for their livelihood and predate the advent of agriculture, low literacy rates, economic backwardness and stagnant population. सो बेसिकली ये जो सारी ट्राइब्स हैं जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इनके साथ में भी बहुत सारी दिक्कतें, यहाँ पे लो लिटरेसी रेट है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है बेसिकली। सो जो इनको बेसिक नीड होती हैं किसी की लाइफ को सस्टेन करने के लिए, वो सारी चीज़ें इन लोगों से डिप्राइव्ड हैं ये उन सारी फैसिलिटीज से। अब क्या है, रिकॉग्नाइजिंग देयर बैकवर्डनेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन इन 2023-24 to improve the socio-economic conditions of the particularly vulnerable tribal groups in India. So to uplift this particular tribal group, to uplift these particular people, Indian government has started a particular scheme, प्रधान मंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन इन 2024। बेसिकली ये जो मिशन स्टार्ट किया गया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू इम्प्रूव the socio-economic conditions of these particularly vulnerable tribal groups. Now moving on, in line with these initiative, the Pradhan Mantri जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM Janman was launched in November 2023 with a budget of rupees 24,000 crore. So to basically to uplift these particularly vulnerable tribal groups, 14.6 लाख पॉपुलेशन को अपलिफ्ट करने के लिए और इन पीवीटीजीज को अपलिफ्ट करने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट ने पिछले साल नवंबर 2023 में पीएम जनमान स्कीम को स्टार्ट किया था। और इस पर्टिकुलर स्कीम का बजट कितना था, 24,000 करोड़। नाउ मूविंग ऑन, the PM Janman seeks to provide essential services to PVTGs, which include safe housing, clean drinking water and sanitation through 11 critical interventions. The PVTGs and frontline officials face challenges in using a mobile application to register for the housing scheme, the biggest direct benefit transfer scheme in the PM Janman, which aims to reach 4.90 lakh PVTG households by 2026. सो बेसिकली जो ये पीएम जनमान स्कीम स्टार्ट की गई थी, उसके अंडर में एक हाउसिंग स्कीम स्टार्ट की गई थी। बेसिकली उस हाउसिंग स्कीम में क्या था कि गवर्नमेंट विल ट्राई टू डायरेक्टली बेनिफिट ऑलमोस्ट 4.90 लाख पीवीटीजी हाउसहोल्ड्स बाय 2026। सो बेसिकली जो स्कीम थी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर दैट एवरी पीवीटीजी हाउसहोल्ड हैज एक्सेस टू सिक्योर एंड हैबिटेबल हाउसिंग। इस पर्टिकुलर स्कीम का जो पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि दिस पर्टिकुलर स्कीम वांटेड टू मेक श्योर दैट एवरी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैव अ हाउसहोल्ड हैज एक्सेस सिक्योर एंड हैबिटेबल हाउसिंग, safeguarding them from environmental challenges and providing them with a sense of security. बेसिकली एक ऐसा घर जहाँ पे वो लोग रह सके, जहाँ पे उन्हें पे सेंस ऑफ सिक्योरिटी जैसा फील आ सके, दैट दे आर सेफ,
बेसिकली ऐसी कुछ स्कीम, इस स्कीम का यही ऑब्जेक्टिव था, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जो होते हैं उनसे वो लोग बच सकें। ये सारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था ये किसका था, पीएम जनमान स्कीम के अंदर में जो हाउसिंग स्कीम स्टार्ट की गई थी। अब इस स्कीम के अंडर में क्या होगा कि बेसिकली 2.39 लाख रुपीस दिए जाएंगे हर एक बेनिफिशियरी को 3 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। अब बेसिकली इससे क्या हो रहा है, द फॉल आउट ऑफ डेटा